Let's turn our Bible this morning to the book of Ephesians. इस समय हम अपने बाइबल को खोलेंगे इफिसियों की पुस्तक में। Ephesians chapter 5. हम इफिसियों के 5वां अध्याय में हम आज देखेंगे। I hope the girls are ready for tomorrow. All the girls ready for tomorrow? Sarika, sure? Okay, so tomorrow by 9:30 everybody should be here. We are going to start the Girls Bible Institute from tomorrow, and we'll start at so by 9:30 in the morning you'll be here. My wife and I will be teaching the Word of God. और कल सुबह 9:30 बजे से पास्टर और उसकी वाइफ सिस्टर लोगों को वचन सिखाएंगे। It will be a 2-week course, and this will build your foundation stronger. और ये 2 हफ्ते का कोर्स होगा और आपकी बुनियाद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत करेगा। We are so thankful that this is made possible by God's grace. और ये हम बहुत ही धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये बहुत ही पॉसिबल हुआ है। Alright, so turn your Bible to Ephesians chapter 5. और इस समय हम अपने बाइबल को खोलेंगे हम इफिसियों 5 अध्याय में। In Ephesians chapter 5, we are going to go through a couple of verses this morning. और इस समय हम इफिसियों अध्याय 5 और कुछ हम वचनों के द्वारा हम आज जाएंगे। This morning we are going to talk about how can you and I become a dear child of God. और आज के सुबह में समय में हम आज जानेंगे कि कैसे हम परमेश्वर की प्रिय संतान बन सकते Now, हैं। if you are a child of God, then if you are born again, if you have trusted Jesus Christ, then you are the child of God. तो अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास पहले से कर चुके हैं तो आप परमेश्वर की संतान हैं। But not everybody are dear child of God. लेकिन हर कोई परमेश्वर की प्रिय संतान नहीं हो सकता। There's one thing about being a child of God, और ऐसा एक है कि परमेश्वर की संतान होना, and there's the next thing is to become a dear child of God. और एक चीज है जो परमेश्वर की प्रिय पुत्र बनना। Now you can be a child of God and not be a dear child of God. आप परमेश्वर के संतान बन सकते हैं लेकिन परमेश्वर के प्रिय पुत्र नहीं बन सकते। When we say about dear, we don't use the word dear for anybody and everybody. हम जो शब्द जो प्रिय होते हैं हम हर किसी के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। Sadly, in this day and age of a perverted life, we tend to use these words for any man and woman. और आज के समय में हम ये जो शब्द है जो प्रिय हम हर किसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। But the word dear is used for the dearly people of your life. लेकिन जो शब्द प्रिय है वो बहुत ही खास लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। The word dear is used for your spouse. और जो प्रिय जो शब्द है वो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। The word dear is used for your children. और आपके बच्चों के लिए ये प्रिय शब्द इस्तेमाल किया जाता है। The word dear is used for somebody that you really love purely. और जो ये शब्द प्रिय है ये बहुत ऐसे लोगों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जो जिसको आप बहुत ही प्यार करते हैं। But sadly, in this perverted life of WhatsApp and Facebook, anybody, even a stranger, is called as dear. लेकिन आजकल के समय में हम देखते हैं फेसबुक में व्हाट्सएप में हर किसी को कह देते हैं प्रिय कह के। Recently, I was talking to a man, and he was messaging me on WhatsApp. और कुछ समय पहले मैं एक व्यक्ति से मैं बातचीत कर रहा था और वो मैसेज भेज रहा था व्हाट्सएप में। And he was a Christian, and so we were having a good chat about certain things. और वो क्रिश्चियन था इसलिए हम कुछ विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। It's one thing to say dear brother or dear pastor or dear friend. और ये एक अलग चीज है कि डियर पास्टर कह के या फिर प्रिय पुत्र कह के। But when a man tells another man, God bless you dear, it sounds very weird. लेकिन जब एक व्यक्ति को कहता है कि परमेश्वर आपको आशीष करे मेरे प्रिय, ये बहुत ही अलग है। But that is what this social media has done. It has taken the pure word and made it pervert. और ये सोशल जो मीडिया है वो जो उसका जो प्योर जो मतलब जो गहराई की जो वर्ड है जो प्रिय है उसको लोगों ने आज हटा दिया है। God wants you and me to become a dear child of God. परमेश्वर चाहता है कि हम सभी लोग परमेश्वर के प्रिय संतान बन सके। And so dear is someone who loves passionately. और प्रिय वही लोग होते हैं जो बहुत ही प्यार करते हैं। Someone who really is honest and pure and true to that love. और ऐसा जो व्यक्ति जो उसके उस प्यार के काबिल है और बहुत ही पवित्रता से अपने आप को प्रस्तुत करता है। So when you believe in Jesus Christ, तो जब यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, you become the child of God. आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। But every day as you grow closer and closer to the Lord,
जैसे आप बढ़ते जाते हैं परमेश्वर की बहुत ही करीब, you become a dear child of God. और क्या बन जाते हैं, परमेश्वर के प्रिय संतान बन जाते हैं Now आप। the Lord loves everybody, परमेश्वर सभी से प्यार करता है, and the Lord likes some people. लेकिन परमेश्वर कुछ जनों को वो पसंद करता है। And the Lord likes some people because they are dear children of God. परमेश्वर कुछ लोगों को पसंद करता है क्योंकि उन लोग परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रिय है। Is my life really glorifying and magnifying Christ every day? क्या मेरे जीवन के द्वारा मैं परमेश्वर को हर दिन महिमा दे रहा हूँ? Whatever we speak and do and how we live, is it glorifying the Lord? जो कुछ भी हम बातचीत करते हैं, जैसे हम जीते हैं, क्या इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है? When somebody will look at us, do they see a difference in our life, or they see the same thing about the worldly people and ours? जब लोग हमें देखते हैं, क्या लोगों को लगता है कि हम बदल चुके हैं, या फिर लोग वही हमारा व्यवहार को देखते हैं? Apostle Paul is writing under the inspiration of the Holy Spirit, पौलुस यहाँ पे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा यहाँ पे लिखता है, and he's encouraging you and me today, just as he encouraged the Ephesians Christians. और जैसे पौलुस ने इफिसियों के क्रिश्चियन मसीहों को उत्साहित किया, उसी तरह हम सभी को भी पौलुस उत्साहित कर रहा He है। says, "Be ye therefore followers of God." और पौलुस कहता है कि तुम सभी लोग परमेश्वर की अनुसरण करने वाला बनो। My dear beloveds, you and I are told to become followers of God. मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें पूछा था कि हम परमेश्वर की अनुसरण करने वाला बन सके। We have people today want to make people to follow us. और लेकिन आज बहुत से लोग देखते हैं कि उन लोग चाहते हैं कि ताकि लोगों को फॉलो कर A सके, man is trying to make his following in a big number. और लोग आजकल कोशिश कर रहे हैं कि उसकी फॉलोअर बहुत ही बड़ा हो सके। And Christians are following men. और आज बहुत से मसीह लोग मनुष्य को फॉलो कर रहे हैं। And we also see that there are people that would tell you and divert you from Christ to apostles and prophets. और हम देखते हैं इससे बहुत सारे लोग हैं जो आपको परमेश्वर से और परमेश्वर की प्यार से आपको बहुत ही दूर लेके जाएंगे। The Bible is telling you that Apostle Paul is saying that you and I should be followers of God. और परमेश्वर की वचन कहता है कि यहाँ पे हमें परमेश्वर की अनुसरण करने वाला बनना चाहिए। That is the ultimate thing that you and I should do. और वही हमारा आखिरी चीज होनी चाहिए जो हम करना चाहिए हमें, Following God. परमेश्वर की अनुसरण करना, Not men but God. मनुष्य को नहीं लेकिन परमेश्वर को। And how do we do that? और उसको हम कैसे करते हैं? As dear children, the Bible says. एक बार जैसे परमेश्वर की वचन कहता है, प्रिय संतान, Be ye therefore followers of God as dear children. इसलिए प्रिय बालकों के सामने परमेश्वर का अनुकरण करो। Now you can follow God someday and not someday. शायद आप कुछ दिन परमेश्वर को फॉलो कर सकते हैं, But a dear child is someone that follows continually. लेकिन जो परमेश्वर की प्रिय जो संतान है, उन लोग हर दिन परमेश्वर को अनुसरण करते हैं। A dear child is in a consistent relationship and fellowship with God. एक जो प्रिय संतान होते हैं, उन लोग हर दिन परमेश्वर के साथ चलते हैं, हर दिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। A child of God is in relationship with Jesus, लेकिन जो परमेश्वर के संतान है, उन लोग परमेश्वर की रिलेशनशिप में है, but may not have a fellowship on a regular basis. लेकिन शायद हर दिन उनका जो रिश्ता है वो शायद नहीं हो सकता है। But a dear child of God लेकिन जो परमेश्वर के प्रिय पुत्र है, is not only is in relationship with Jesus, वो केवल यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप में नहीं है, but has a consistent fellowship with Jesus every day. लेकिन हर दिन बिना रुके उसके जीवन में यीशु मसीह के साथ फेलोशिप होता And है। how does this fellowship continues? तो ये फेलोशिप कैसा लगातार होंगे? A dear child is always here talking to each other. एक प्रिय संतान वही जो परमेश्वर से हर दिन बातचीत करता है, We talk to God and we listen to Him. और हम परमेश्वर से हम बातचीत करते हैं और हम परमेश्वर को सुनते हैं। And when we talk to Him, He listens to us. जब वो बात करते हैं तो हम उसको सुनते हैं। My dear friend, that is a dear relationship with God. वही एक प्रिय संतान का एक रिलेशनशिप होता है। So keep in mind, you are not only called to be the child of God, but to become a dear child of तो God. आपको मन में रखना चाहिए, आप केवल परमेश्वर की संतान नहीं, लेकिन एक प्रिय पुत्र बनना चाहिए आपको। There is something about being a child and dear child. एक ऐसा बहुत ही एक डिफरेंस है परमेश्वर के संतान बनना और प्रिय संतान बनना। When God looks at me, is He hitting on His head and say, "Why did I save him?" क्या जब परमेश्वर आपको देखता है, क्या परमेश्वर ऐसा सोचता है कि मैंने क्यों इसको बचाया? Or God is saying, "I am delightful upon this child of mine because he or she is a dear to me." या फिर परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैं बहुत ही आनंदित मनाता हूँ क्योंकि मैंने उन लोगों को बचाया। Now here, this is the truth. और यही एक सत्य है, For God, परमेश्वर के लिए all His children are dear. हर जो बच्चे हैं वो प्रिय है।
But not all children are living a dear life to God. लेकिन हर जो परमेश्वर की संतान है, बच्चे हैं, उन लोग प्रिय एक संतान जैसा उन लोग नहीं जी रहे A हैं। mom and dad might not make a difference in their children. शायद एक जो मम्मी पिताजी उन लोग शायद अपने बच्चे लोग उन लोग के लिए कुछ नहीं करेंगे शायद, For the parent, all their children are dear to them. क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे उन लोग के लिए बहुत ही प्रिय होते हैं। But not all children are living a dear life to their parents. लेकिन हर बच्चे लोग अपने माता पिता के लिए उन लोग प्रिय जीवन नहीं जी रहे हैं। There are some that really brings delight and joy to the parents' heart. लेकिन ऐसे कोई बच्चे हैं जो अपने माता पिता के जीवन में लोग खुश लाते हैं। But there are some children that will bring a burden and pain to the heart of the लेकिन parents. ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग हैं जो उन लोग माता पिता के ऊपर उन लोग बोझ को लाते हैं। So it's not about whether God thinks about you as dear or not. तो ये नहीं कि परमेश्वर आपके बारे में सोचता कि नहीं सोचता कि आप प्रिय है कि नहीं। If you have received Jesus Christ, then you are dear to God. अगर आप परमेश्वर को ग्रहण किए हैं तो आप परमेश्वर के लिए एक प्रिय है। But the question is, are you living a dear life to God? लेकिन प्रश्न आपको पूछना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर के लिए प्रिय जीवन जी रहा हूँ? Is my life bringing glory and honor to क्या Christ? मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिल रही है? Is Jesus really happy about what I do and what I think and what I say? जो कुछ भी मैं कहता हूँ, जो कुछ भी मैं सोचता हूँ, क्या उसके द्वारा परमेश्वर बहुत ही खुश है? So this morning, the Bible helps us how to become a dear child of तो God. आज के सुबह के समय परमेश्वर की वचन हमें मदद करता है कि कैसे हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र बने। In verse number 2, we are told how to become a dear child. और दूसरा वचन में कहता है कि कैसे हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र बन सकते हैं। Now remember, the becoming of a dear child is connected with following God. और आपको जानना चाहिए, अगर आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र बनना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की अनुसरण भी करना So है। it's about consistent relationship with God, तो ये हर दिन परमेश्वर के साथ लगातार होना है, following Him. परमेश्वर की अनुसरण करना। Jesus said, "Follow me." और यीशु ने कहा कि मुझे अनुसरण करो। Apostle Paul is saying, "Follow God." और पौलुस कहता है कि परमेश्वर को अनुसरण करो। Jesus is God, यीशु मसीह परमेश्वर है and you and I are supposed to follow और God. हम सभी लोग परमेश्वर की अनुसरण करना So चाहिए। first thing, how do I do that? तो पहले चीज जो है मैं कैसे उसको करूंगा, I do that in walking in love. और मैं क्या कैसे करता हूँ, मैं प्यार में चलने के In द्वारा। verse number 2, he said, "Walk in love." और 2 वचन में कहता कि प्यार में चलो। How do I walk in love? कैसे मैं प्रेम में चलता हूँ? Is it possible to walk in love? क्या ये बहुत ही आसान है प्यार के ऊपर चलना? Walk in love is not taking steps प्यार में चलना इसका मतलब ये नहीं कि कदम लेना or putting some hearts on the road and walking on that heart. या फिर कुछ चीज को रोड के ऊपर डाल के हम उसके ऊपर चलना, ये नहीं Look what होता the Bible है। says. देखो परमेश्वर की वचन क्या कहता है, And walk in love as Christ also hath loved us. और प्रेम में चलो जैसे ने मैं भी तुम्हें प्यार किया। The word walk in love is an intentional daily character that you display. जो प्यार में चलना वो क्या है, हर दिन की चरित्र आपकी जीवन में जैसे हम बर्ताव करते हैं। As Christ loved, so the word walk in love is an action that is displayed by your words and your character. तो ये जो प्यार में चलना होता है, ये क्या है, आपकी शब्दों के द्वारा, क्रिया के द्वारा जैसे आप अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। I need to walk in love as Christ loved you and me. मुझे प्यार में चलना चाहिए जैसे यीशु मसीह ने हम सभी को प्यार किया है। The love of Christ was pure. जो यीशु मसीह की जो प्यार है वो बहुत ही पवित्र था, The प्योर था। love of Christ was sacrificial. और परमेश्वर की जो प्यार है वो बहुत ही सैक्रिफिशियल था। The love of Christ was generously giving. और यीशु मसीह की जो प्यार है वो बहुत ही देने वाला था। Look what the Bible says. देखो परमेश्वर की वचन क्या कहता है, And walk in love as Christ also had loved us. और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्यार किया। And has given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान किया है। So a walk of love is a walk of sacrifice. तो ये जो प्यार का जो कार्य है वो क्या है, एक बलिदान का कार्य। A walk of love is a walk of offering your life to God. और ये जो प्यार में जो चलना होता है, ये परमेश्वर को आप बलिदान देना होता है। You know, when we dress up, we put some perfume on our body. जब हम ड्रेसअप होते हैं, जहाँ पहनते कपड़े पहनते हैं, हम क्या करते हैं, हम कुछ परफ्यूम लगाते हैं। And so
Some people will say, wow, you smell good. और कुछ लोग कहेंगे ये बहुत ही अच्छा खुशबू है। But the Bible says what smelled good about Christ was the love that he had for you and me. लेकिन परमेश्वर की वचन क्या कहता है? खुशबूदार वही है जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो हमसे प्यार किया है। He sacrificed himself for you and for me, and it was a sweet smelling savor to God. और यीशु मसीह ने हम सभी लोगों के लिए अपने आप को बलिदान किया, और ये परमेश्वर और ये प्रभु के लिए बहुत ही अच्छा खुशबू था। You cannot love anybody without sacrifice. आप किसी को प्यार नहीं कर सकते हैं सैक्रिफाइस के बिना। When you truly love somebody, you will sacrifice time. जब आप किसी को प्यार करते हैं तो अपने टाइम को आप सैक्रिफाइस करेंगे। You will sacrifice your own personal conveniences. और अपने जो भावनाएं हैं उसको भी आप सैक्रिफाइस करेंगे। When you love somebody, you will be investing your time with those people. जब आप किसी से प्यार करेंगे उस लोगों से आप अपने टाइम को बिताएंगे। You won't be thinking too much about you, but the person that you love. लेकिन आप खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं उसके बारे में आप ज्यादा सोचेंगे। And that is how Jesus loved you and me. और उसी प्रकार यीशु मसीह ने अभी हम सभी से प्यार किया है। He being God came down and became man because he loved you and me. और परमेश्वर होने के बावजूद ये परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य बना हम सभी के लिए। And he took yours and my sins upon him and died on the cross of Calvary. और यीशु मसीह ने हम सभी के पापों को अपने ऊपर लिया और क्रूस पे मर गया। And he shed his precious blood because he loves you and me. और यीशु ने अपना बहुमूल्य लहू को बहाया क्योंकि वो हमसे प्यार करता So है। the love of Christ was the love of sacrifice. तो यीशु मसीह की जो प्यार था वो एक बलिदान था। The love of Christ was a love of offering himself to you. और यीशु मसीह की जो प्यार था वो एक भेंट के समान था। And the love of Christ was satisfying to God, the Father. और परमेश्वर यीशु मसीह की जो प्यार था वो पिता को वो संतुष्ट किया। So first and foremost, how do I become a dear child of God? और पहली जो बात है कैसे मैं परमेश्वर की प्रिय पुत्र बन सकता हूँ? By loving like Jesus loved. और यीशु मसीह की जैसा प्यार करने के द्वारा परमेश्वर Which को। means I need to love God first. इसका मतलब मुझे सबसे पहले परमेश्वर को प्यार करना है। I need to love God by giving myself to Him. और मैं परमेश्वर को कैसे प्यार कर सकता हूँ? खुद को परमेश्वर में देने के द्वारा। And realizing that it is no more about me, but it is about Him. और आपको जानना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ लेकिन परमेश्वर की वजह से। It's not about my conveniences, but His desire and delight. ये मेरी भावनाएं नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छाएं हैं और उसकी आनंद है। There's a problem with Christianity today is when we get saved, we tend to live for ourselves now. और आजकल बहुत से ऐसे लोग मसीह है जो उद्धार पाने के बाद लोग अपने लिए जीते हैं। Oh, it is too early. ये बहुत ही जल्दी है। Oh, it is too late. ये बहुत ही लेट है। Oh, the preaching is short. और वो प्रचार बहुत ही शोर The है। preaching is too long. प्रचार बहुत ही लंबा है। There are few people. और बहुत ही कम लोग हैं। Or there are more और people. बहुत ही ज्यादा लोग हैं। Or the rain is too heavy. और जो बारिश बहुत ही ज्यादा The हो रहा weather है। is too cold. और बहुत ही ठंडी है। The humidity was too much. और बहुत ही गर्मी है। And people tend to use every excuses to stay away from showing their love to Christ. और बहुत से लोग एक्सक्यूज बनाते हैं अपने जीवन में परमेश्वर से दूर रहने के लिए। My dear friend, that is not how you and I become dear child of God. मेरे प्रिय, उस प्रकार से हम परमेश्वर के प्रिय संतान नहीं बन पाएंगे। The very reason this morning that you could get up at 4 o'clock and be here is because your heart's desire is you want to be a dear child of God. आज सुबह के समय में आपने सही समय पे आकर यहाँ पे आए क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय संतान बनना चाहते हैं। Look at your neighbor and pat them and say good job. और आपके पड़ोसी को देखकर आप बहुत अच्छा कार्य किया। Say good job. गुड जॉब। That is the step of becoming a dear child of और God. वही एक कदम है परमेश्वर की प्रिय संतान बनने के लिए। You begin to sacrifice. आप शुरुआत करते हैं बलिदान से। You sacrifice your time. और आपके टाइम को आप बलिदान करते You हैं। sacrifice your personal conveniences. और आपकी भावनाओं को आप बलिदान करते हैं। Just like Jesus. यीशु मसीह की जैसा। Now, of course, we cannot sacrifice like Jesus. और हाँ, हम यीशु मसीह की जैसा सब कुछ हम बलिदान नहीं कर सकते। Jesus gave Himself completely for you. यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरीके से दे दिया हमारे लिए। But Jesus is saying, you may not be able to die for me, but can you live for me? यीशु ने हमारे लिए मरा। यीशु ने हमें नहीं पूछा मरने के लिए, लेकिन यीशु ने पूछा कि क्या आप मेरे लिए जी सकते हैं? Can you and I live for Christ every day consistently? क्या हर दिन हम यीशु मसीह के लिए हम जी सकते हैं? Living for Christ is what God wants you and me to do today. यीशु मसीह के लिए जीना वही परमेश्वर हमसे चाहते हैं आज। Loving Him, उसको प्यार करना, talking to Him, उनसे बातचीत करना, reading His
word, और उसके वचन को पढ़ना, loving your brothers and sisters, और आपके भाई in the बहनों body को of प्यार Christ, करना जो मसीह की बॉडी में है, encouraging one और another, एक दूसरे को उत्साहित करना, edifying one और another, हर एक जनों को विश्वास में बढ़ाना, building up instead of breaking down. और हर एक जनों को तोड़ने से अच्छा खुद को बनाना अपने आप को, And that is what Christ does. और वही यीशु मसीह करते हैं। He lifts you and me from the mighty clay of sin. और क्या करते हैं, हमें पाप की मिट्टी से हम सभी को उठाता है, He washes you and me with His precious blood. और उसकी लहू के द्वारा हम सभी को शुद्ध करता है, He puts and establishes our life on the solid rock of our salvation. और परमेश्वर की चट्टान के ऊपर हमारे विश्वास को रखता है। He puts a new song in our mouth and that we can sing for His हमारे glory. मुंह के अंदर वो नया गीत को देता ताकि हम उसकी महिमा कर He सकें, establishes our going. और हमारे चलने के हर चीजों को वो एस्टैब्लिश करता My है। dear friend, when we become a child of God, the next step is to become a dear child of मेरे प्रिय, God. जब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, हमारा पहला कदम होना चाहिए कि हम परमेश्वर की प्रिय संतान बनना है। The Lord wants us to grow every day. परमेश्वर चाहता है ताकि हम हर दिन बढ़ सके, So walk in love as Christ loved. तो प्यार में हर दिन चलो जैसे यीशु मसीह ने प्यार में चला। There are certain things in our life that will hinder your walk with Christ to become a dear child. और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रुकावटें लाएगी आपके जीवन में परमेश्वर की प्रिय संतान बनने के लिए। And these kind of sins will forfeit your blessing of inheritance in heaven. तो इस प्रकार के जो पाप है क्या होगा, रुकावटें लाएंगे ताकि आप परमेश्वर की राज्य में अधिकार ना प्राप्त कर सके। In this church, in Ephesus church, there were some people who called themselves as Christian. They were living a very wicked life. और ये कलीसिया में ऐसे कुछ लोग थे, इफिसियों के कलीसिया में, जो बहुत ही गंदे जीवन जी रहे थे। In verse number 3, we read about them, and Paul says, "I can't even mention those sins." और ये वचन 3 में हम पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है कि उन पापों को मैं मेंशन भी नहीं कर पाता हूँ, Because the sins were so bad. क्योंकि जो पाप थे बहुत ही दुष्ट थे, And he did not want to speak openly to the church through the letter because there were many people. और वो पापों को वो नहीं लाना चाहता था क्योंकि बहुत से ऐसे मसीह लोग थे जो मसीह में थे। He says, "But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as becometh saints." और वचन 3 में कहता है, जैसा पवित्र लोगों को योग्य है वैसा तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता, ना बातचीत की और ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सभी नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए। The first, in verse number 3, we talk about sexual sins. और हम देखते हैं, हम सेक्सुअल के बारे में हम देखते हैं वचन 3 में। In verse number 4, it's about speaking of verbal sin. और हम 4वें वचन में हम देखते हैं कि गलत शब्दों को इस्तेमाल करना, Foolish talkings, the Bible speaks. और बहुत ही फुलिश बातचीत करना। My dear friend, these kind of words does not bring glory and thanks to God. और इस प्रकार के जो शब्द ये परमेश्वर को महिमा नहीं देता, No sin brings glory to God. कोई बात परमेश्वर को महिमा नहीं देता। And that is what Satan wants, that you and I will fall into sin and grieve the Holy Spirit. और वही शैतान चाहते हैं कि ताकि हम पवित्र आत्मा को दुखी करें और परमेश्वर को ताकि हम दुखी करें। But it is not God or Satan who brings sin in our life. लेकिन ये परमेश्वर नहीं या फिर शैतान भी नहीं जो हमारे जीवन में पाप को लाता है। Sin comes in our life because of our wicked desire. पाप हमारे जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा इच्छाएं बहुत ही गलत है। But these desires of wickedness come because of our relationship of every day with whom we talk and what we spend in. और लेकिन ये गलत जो हमारे जीवन में स्वभाव है, ये इसीलिए आते हैं जिससे हम बातचीत करते हैं या फिर जिन लोगों से हम मिलते हैं। If our friend circles are those people who speak dirty things, that is what you and I will be thinking every day. अगर हमारे मित्र लोग बहुत ही गंदे गंदे बात करते हैं तो उन लोगों से अगर हम मिलेंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। If our friend circles and our social media things, it's all about wicked and sinful things, that is what we will become. और अगर हमारे सोशल मीडिया या फिर हमारे मित्र लोग अगर हर दिन गलत चीजों को उन लोग इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसी प्रकार हम भी सोचने लगेंगे, And that is what comes out from our mouth. और वही हमारे मुंह से भी निकल आता है। And God says, no, that does not bring glory to God. और परमेश्वर कहता है नहीं, इन सब चीजों के द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। And don't use foolish words. और फुलिश वर्ड को आप इस्तेमाल नहीं करना है, मूर्ख का शब्द. मूर्ख का शब्द आपको The इस्तेमाल नहीं करना है। Bible says, give thanks to God. और परमेश्वर की वचन कहता है कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। In verse number 5 we are told, for this ye know that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom
of Christ and of God. और 5वां वचन में कहता है कि क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक या फिर बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। Now if you become a child of God, you will go to heaven. अगर आप परमेश्वर की संतान बनते हैं तो आप स्वर्ग में जरूर जाएंगे। But then even after you go to heaven, you might not enjoy heaven. अगर आप स्वर्ग में जाने के बावजूद आप स्वर्ग में आप आनंद नहीं मना पाएंगे। You might escape hell, शायद नरक में से बच जाएंगे, but you might not enjoy heaven if you live in this sin. लेकिन अगर आप पाप में जिएंगे आप स्वर्ग में आप आनंद नहीं मना पाएंगे। And so God says, this is not what will make you a dear child. और परमेश्वर की वचन कहता है कि ये चीजें आपको परमेश्वर की प्रिय संतान नहीं बनाएगा। You become a dear child by walking in love. आप परमेश्वर की प्रिय संतान बनते हैं प्यार में चलने के द्वारा। So you love God first. तो आप परमेश्वर को पहला प्यार करो। You love your family. पहले आपके परिवार को प्यार करो। You love your church members. आपकी कलीसिया के परिवार को प्यार करो। Try to build up a friends circle within the church. और कलीसिया में ही एक आप मित्रों को बनाइए, so that your character will be built up. ताकि आपके चरित्र ताकि अच्छे हो सके, So that you may not become like the pigs that roll in the gutters. ताकि आप सुअर के जैसा ना बन सके जो हमेशा कीचड़ में रहता है। God wants you to be as pure as a dove that flies up in the sky. और परमेश्वर चाहता था कि हम बहुत ही शुद्ध हो सके जैसे कबूतर जैसा। Now we may have ups and downs in our lives, हमारे जीवन में उच्च नीच हमें होंगे, but God is always there to pick us up. लेकिन परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है हमें उठाने के When लिए। we call upon Him, जहाँ हम परमेश्वर को पुकारेंगे and when we feel that guiltiness of our sin, और जहाँ हमारे जीवन में हम दुखी हो जाएंगे जो हमने पाप किया है, we repent and say, Lord, forgive me for grieving you. और जहाँ हम पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर से माफी मांगेंगे दुखी The करने के लिए। Bible says He's just and faithful to forgive you from all your sin and और परमेश्वर की unrighteousness. वचन कहता है वो धर्मी है, वो बहुत ही फेथफुल है हमें हर अधर्म से क्षमा करने के लिए। His blood will still forgive yours and my sin for the next 1,000 years. और यीशु मसीह की लहू 1000 साल के लिए भी यीशु मसीह की लहू हमें शुद्ध कर सकता When we है। understand this truth, जब हम ये सत्य को जानते हैं this should say, wow, God loves me so much. और हमें समझना चाहिए कि देखो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है He provides my needs. और मेरी जरूरतों को वो पूरा करता He है has given me good health. और यीशु मसीह ने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है। And I don't want to be living an ungrateful life towards God. मैं जो धन्यवाद की जीवन नहीं वो जीवन नहीं जीना चाहता हूँ मैं, I want to bring glory and honor to Him. लेकिन मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। And that is by loving God. और ये परमेश्वर को प्यार करने के द्वारा I want to love God with my relationship and fellowship. और मेरे रिश्ते के द्वारा फेलोशिप के द्वारा मैं परमेश्वर को प्यार करना चाहता So हूँ। we need to have a consistent daily fellowship with Him. और हमें हर दिन परमेश्वर के साथ हमें रिश्ते में रहना चाहिए। And that love should radiate with your wife and your husband and your children. और ये प्यार जो है आपके परिवार में भी आनी चाहिए। A person that loves God will love his wife and love her husband. जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है वो अपने पति को या अपनी पत्नी को जरूर प्यार An करेगा। individual that loves God will love their children and the children will love the parents. और ऐसा जो व्यक्ति जो परमेश्वर से प्यार करता है वो लोग अपने माता पिताओं से या फिर बच्चे लोगों से वो प्यार करेगा। This is how we manifest the love of Christ. उसी प्रकार से हम परमेश्वर की प्यार को हम प्रकाश करते हैं। People need to know, okay, this person really walks with God. और लोगों को जानने की बहुत ही आवश्यकता है कि हम परमेश्वर में चलते हैं We need to love what God loves. और हमें वही प्यार करना जो परमेश्वर प्यार करता है। And we need to hate what God hates. हमें नफरत करना है जो कुछ परमेश्वर नफरत करता है। Love does not mean you love everything. प्यार करना मतलब ये नहीं कि हर चीज को प्यार करना। True love hates what God hates. जो सत्य प्यार है वही है जो परमेश्वर नफरत करता है। And so, dear friend, walk in love with तो मेरे God. प्रियो आप मसीह में चलो हर दिन प्यार And में। let that love be radiating in your family. और ये जो प्यार है आपके परिवार में ताकि आ सके And may that love be radiating in your church. और आपकी कलीसिया में वही प्यार ताकि प्रकट हो सके And may that love be radiating in your neighborhood. और आपकी पड़ोसी में वो प्यार ताकि प्रकट हो सके। Let people say, man, these people are changing. They're different people now. और लोगों को कहना चाहिए ये देखो ये लोग बदल चुके हैं, हम लोग अभी अलग बन चुके हैं। Their walk is not like how they were in the past. लोग ये चाल चलना भी उस प्रकार से नहीं जैसे वो लोग पहले चलते थे। My dear friend, you know, you have seen a pig, right? आपने सुअर को देखा रहेगा The pigs are always found sleeping in a dirty gutter. और जो सुअर होते हैं हमेशा वो लोग कीचड़ में सोते हैं। And so if you bring the pig अगर आप सुअर को लाते हैं and wash the pig with shampoo और शैम्पू के द्वारा अगर आप धोते हैं उसको and put nice perfume, और कुछ अच्छा परफ्यूम डालते हैं, and even if you want, put a nice shirt and a tie अगर आप टाई भी डालना चाहते हैं या फिर शर्ट डालना चाहते हैं and leave the pig और वहाँ पे सुअर को छोड़ दीजिए आप and
Give a special room for the pig और सुअर के लिए एक अच्छा रूम दीजिए with the AC, और एसी के साथ spongy mattress, और बहुत ही मतलब सॉफ्ट मैट्रेस के द्वारा warm blanket. और एक ब्लैंकेट चादर के द्वारा। What do you think where the pig will run? और आपको क्या लगता है सुअर कहाँ पे भागेगा उस समय? You think the pig will be on the mattress or inside the gutter? क्या आपको लगता है सुअर वहाँ भी मैट्रेस पे रहेगा अपने आप रखा या फिर कीचड़ में जाएंगे? The pig will always go to the gutter हमेशा जो सुअर है वो कीचड़ में ही जाएगा because that's what the character of the pig is. क्योंकि वही चरित्र है सुअर का। But God is calling you and me as His sheep. लेकिन परमेश्वर ने हम सभी को उसकी भेड़ जैसा हमने बुलाया है। You know, sheep don't go and sleep in the gutter. हम देखते हैं भेड़ कीचड़ में जाके नहीं सोता है Sheep are taken care by the pastor. क्योंकि जो भेड़ है उन लोग पास्टर के द्वारा उन लोग अगुवाई किया जाता है। Jesus Christ is the chief pastor. और जो हमारा यीशु मसीह वो प्रधान पासवान है। The word pastor simply means shepherd. और जो पासवान जो शब्द है वो उसका मतलब चरवाहा है। Jesus is our chief shepherd. और यीशु मसीह हमारा मुख्य हमारा चरवाहा है। He is a great shepherd. और वो हमारा महान चरवाहा है। He is a good shepherd. और वो अच्छा एक चरवाहा है। And he is your shepherd. और वो आपका चरवाहा है। Above all, he is my shepherd. और उससे भी अधिक वो मेरा चरवाहा है। Let us all say, the Lord is my shepherd. इस समय हम सब लोग कहेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है। हिंदी में बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है। Amen. And so we are not called to live like a pig. और हम सुअर के जैसा हमें नहीं जीना है। But we are called to live like a lamb and a sheep in the arms of the shepherd. लेकिन हमें कहा गया है ताकि हम मेमना जैसे ताकि हम परमेश्वर की कंधों में ताकि हम जी सकें। So let no man deceive you in vain words. तो कोई भी लोग आपको गलत शब्दों में ताकि धोखा ना दे। God wants you to every day grow to become a dear child. और परमेश्वर चाहते हैं ताकि हम हर दिन बढ़ सके ताकि हम परमेश्वर की प्रिय संतान बन सके। People should not look at you and say this person is worse than before. लोगों को आपको देखते हुए ये नहीं कहना कि ये तो बहुत बिगड़ चुके पहले से भी ज्यादा। People should look and say, "Man, this girl and this man is a different person from what they were." जब लोग देखेंगे आपको तो कहना चाहिए कि ये बहुत ही बदल चुके पहले से भी। Are we little better than last month? क्या हम पिछले महीने से भी ज्यादा हम बेहतर हैं? Is there some change that is happening within us? क्या हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ रहे हैं? Are we reading our Bible better than last month? क्या हम पिछले महीने से भी ज्यादा हम बाइबल को पढ़ रहे हैं? Are we praying better than last क्या month? हम पिछले महीने से भी ज्यादा हम प्रार्थना कर रहे हैं? Our love for Christ, has it increased more than last week? क्या हमारे परमेश्वर के लिए प्यार वो ज्यादा बढ़ रहा है पिछले महीने से भी? Are we more dear than yesterday, today to God? क्या हम कल से भी ज्यादा हम परमेश्वर की हम प्रिय है? Every day is an opportunity not for us to go back to the gutter. हर दिन आपके पास एक मौका है परमेश्वर की कुछ बनने के लिए, गटर में जाने के लिए नहीं। Every day is an opportunity to become a dear child of God. हर दिन आपके पास एक मौका है परमेश्वर की प्रिय संतान बनने के लिए। You know, if God wanted, He could have said, "Come up and finish." He could have been died last night. अगर परमेश्वर चाहता तो आपको कहते कि चलो आ जाओ ऊपर और आप पिछले रात को आप मर जाते। But God gave you and me one more day, लेकिन परमेश्वर ने हमें और एक दिन दिया है so we can become better than yesterday. ताकि हम कल से भी ज्यादा बेहतर हो ताकि हम बन That we सके। can love Jesus better than yesterday. ताकि हम कल से भी ज्यादा यीशु मसीह को ताकि हम प्यार कर That सके। we can worship Jesus better than yesterday. ताकि हम कल से भी ज्यादा परमेश्वर की इबादत कर सके। That we can serve Jesus better than ताकि yesterday. हम परमेश्वर की सेवा कर सके कल से भी ज्यादा। Serving Jesus is not only coming to church and preaching and teaching. परमेश्वर को सेवा करना ये केवल कलीसिया में आना या कि बाइबल पढ़ना नहीं होता है। Serving Jesus is also taking a broom and cleaning your home. और यीशु मसीह की सेवा करना ये घर में झाड़ू मारना भी होता है। Serving Jesus is also washing the vessels in your kitchen. और आपके किचन के रूम में आप बर्तन धोना भी होता है परमेश्वर की सेवा Serving करना। Jesus is also cooking in love for your family. और परमेश्वर को सेवा करना आपके परिवार के लिए प्यार से पकाना। Serving Jesus is also dressing up for the Lord. और परमेश्वर को सेवा करना परमेश्वर के लिए पहनना भी होता है। How wonderful it is to see our dear sisters standing here in line in the morning. कितना ये अच्छी बात है कि हमारे प्रिय सिस्टर लोग यहाँ पे लाइन में खड़ी थी। How beautiful it is to see that they are not dressing up like the worldly women. और ये कितना अच्छी बात है कि उन लोग संसार के जैसा नहीं पहन रहे उन लोग। How wonderful it is to see that they are dressing is absolutely modestly bringing glory and honor to और ये God. बहुत ही अच्छी बात है जो हम देख सकते हैं उन लोग परमेश्वर के लिए उन लोग पहन के आई हैं। And God says we need to dress up for the और Lord. परमेश्वर कहता है कि हमें परमेश्वर के लिए पहनना है। Not trying to show more of your flesh, but more of your heart to God. ये नहीं लेकिन उससे भी होते हमारे हृदय परमेश्वर के साथ। Hallelujah. Hallelujah. These are the steps of how you grow step by step for the और Lord. यही कदमें हैं जो हम परमेश्वर में हम बढ़ सकते हैं हर दिन।
God is saying, I want you to be different. You are a king and a queen of Christ. परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हमें बदलना है और हम अलग हैं क्योंकि हम परमेश्वर की हम राजा है और हम रानी है। That is what God is making and molding us to become. और वही परमेश्वर चाह रहे हैं ताकि हम वही बने। And my prayer is every day that when we wake up, we will say, Dear Lord, I want to be your dear child today. तो मेरी प्रार्थना ये होगा जब हम सुबह के उठते हैं हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए कि परमेश्वर मैं आपकी प्रिय संतान बनना चाहता हूँ। Every day you will say, Lord, I want to overcome this particular sin in my life. और आपको कहना है कि परमेश्वर ये पापों को मैं अतिक्रम करना चाहता हूँ। Give me the victory. और मुझे विजेता प्राप्त Maybe there कीजिए। is somebody who is always disturbing you on your social network, sending you unnecessary joke that is filthy and wicked and sinful. शायद सोशल नेटवर्क में शायद आपको बहुत से लोग ऐसे गंदे चीजें आपको भेज रहे रहेंगे शायद। Maybe you need to say, I don't want this anymore. शायद आपको कहना है उसमें मुझे ये सब नहीं चाहिए। And maybe even block it. और आपको ब्लॉक करना है। And this is the way how we grow to become a dear child of God. उसी प्रकार से हम परमेश्वर के प्रिय संतान हम बन सकते Or हैं। you might be having friend circle who are always using filthy words in their talk. शायद आपके पास ऐसे दोस्त होंगे जो बहुत ही गलत शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। When you go to college, the next word every time that comes from the mouth is the F word in the school and college today. जब आप कॉलेज में जाते हैं या फिर स्कूल में जाते हैं शायद शब्द ऐसा हो चुके हैं जो पहले जो शब्द है वो बहुत ही गंदा है। Always remember when you read God's word, हमेशा आपको याद करना चाहिए परमेश्वर के वचन को आप जब पढ़ते हैं you are taking God's word into your mouth, to your heart, and to your body. और आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को आपके मुंह के अंदर ले रहे हैं, आपके हृदय के अंदर ले रहे हैं, आपके शरीर में ले रहे हैं आप। When you receive the Lord's Supper, जब आप प्रभु भोज आप ग्रहण करते हैं you are remembering what Christ did for you on the cross. उस समय आप याद करते हैं जो कुछ भी यीशु ने हमारे लिए किया है। God has made your tongue to bless His holy name. परमेश्वर ने आपके जवान को उसकी महिमा करने के लिए दिया है And your tongue should be used for purity and holiness. और आपके जवान परमेश्वर की शुद्धिकरण के लिए उसकी आराधना के लिए होने चाहिए। Every man and woman who lived a filthy life have always regretted. जो मर्द या फिर औरत है जो उन लोग गलत चीजों को इस्तेमाल करते हैं हमेशा उन लोग मना किया गया है उन लोगों But को। everyone that fought against sin and lived a holy life have only enjoyed life every day. लेकिन जो ऐसे व्यक्ति लोग जो पाप के विरुद्ध अंदर खड़े हुए हैं उन लोग हमेशा आनंद के जीवन जिए। God will always bless you if you strive to become a dear children of God. परमेश्वर हमेशा आपको आशीष करेगा अगर आप परमेश्वर के प्रिय संतान होने के लिए अगर आप हर दिन कोशिश करेंगे। To love your husband and wife and your children, you need to love Christ first. पतियों को या फिर पत्नियों को या फिर बच्चों को प्यार करने के लिए आपको पहले परमेश्वर को यीशु मसीह को प्यार करना To है। love your brother and sister and your parents, you need to love your God first. The भाइयों Lord को या Jesus Christ. अपने भाइयों को बहनों को प्यार करने के लिए आपको पहले सबसे पहले यीशु को प्यार करना है। Dear friends, मेरे प्रियो if our love for Christ is pure, अगर हमारा जो प्यार है यीशु मसीह के लिए जो प्योर then है our love with our brethren will be pure. हमारा जो भाई बहन का जो प्यार है वो बहुत ही शुद्ध होगा। I was reading last night in our family prayer time in the book of Proverbs chapter 12. मैं नीति वजह से कल रात को मैं पढ़ रहा था And the Bible speaks about with a family prayer. और फैमिली प्रेयर में परिवार की प्रार्थना में मैं पढ़ रहा था उस समय। The Bible speaks about the heart becomes heavy and stoops because of sorrow. और मैं नीति वचन में रीड कर रहा था कि हमारे हृदय बहुत ही मतलब बोझ में दब जाते हैं। The heart stoops because of the heaviness in our heart. और दुखी हो जाता है क्योंकि हमारे हृदय में बहुत ही बोझ है। My dear friend, that's what sin brings. और वही पाप हमारे जीवन में लाता है। Sin makes our heart very heavy and unhappy. और पाप हमारे जीवन में बहुत ही बोझ को लाते हैं और हमें खुश नहीं करते हैं। But when we live for Christ, लेकिन जब हम मसीह के लिए जीते हैं, when we cast our burdens to the feet of Christ, जब हमारे चिंताओं को हम यीशु मसीह में डालते हैं, the Bible says our heart becomes light. परमेश्वर की वचन कहता है हमारे हृदय बहुत ही नरम हो जाते हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। And the joy of the Lord just revives within और us. परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर बहुत ही फिर से आने लगता है। When your heart is made pure and clean, जब आपके हृदय शुद्ध है, प्योर है, your health will be strong also. और आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा होगा। A sinful heart will only bring an unhealthy life. लेकिन जो पाप से भरा हुआ जो हृदय है वो हमेशा उनके जीवन में अच्छा स्वस्थ नहीं लाएंगे। But a heart that loves God will bring a healthy life. लेकिन जो हृदय परमेश्वर से प्यार करता है उसके जीवन में बहुत ही अच्छा स्वस्थ आएगा। God wants you and me to become strong
not only spiritually but also healthy. परमेश्वर हम सभी को मजबूत होना चाहता है, केवल आत्मिक जीवन में लेकिन शारीरिक जीवन में भी। When we live our life in accordance with God's word, God will take care of everything. जब हम परमेश्वर की वचन के अनुसार जब हम जिएंगे, परमेश्वर हर चीजों को अगुवाई करेगा, रखवाली करेगा। My dear friend, when you will cast your life in the hand of Christ, जब अपने जीवन को परमेश्वर की उसके सम्मुख में, उसके हथेली में आप डाल दीजिए। say, Lord, you take control of my और life. आप कहिए कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को अगुवाई करिए। When you cast your life in the hand of Christ, जब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में जब आप डाल देते हैं, the Lord will take control of all the rest of your life. तो आपके हर दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको अगुवाई करेगा। You don't have to worry who is going to come and marry me, और आपको ये चिंतित होने की जरूरत नहीं, कौन आके मुझे शादी करेगा, what will happen in my life, और मेरे जीवन में क्या होगा, will my wife will be good or bad, क्या मेरी पत्नी अच्छी होगी या फिर खराब होगी, will I have a wonderful husband who will love me. क्या मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा पति होगा जो मुझे प्यार करे। You love Christ and Christ will take care of your life. आप यीशु मसीह को प्यार करो और यीशु मसीह हर चीजों को अगुवाई करेगा। If you run after the world, you will get a worldly man. अगर आप संसार के पीछे भागेंगे, एक संसार के व्यक्ति आपको मिलेगा। You run after the world, you will get a worldly woman. अगर आप संसार के पीछे भागेंगे तो आपको एक खराब संसार की ओर से औरत मिलेगा। Then there is always fight and divorce and all kind of atrocities. तो आपके जीवन में हर दिन लड़ाई होंगे और आपके जीवन में डिवोर्स भी हो सकते हैं। You run after Christ. लेकिन यीशु मसीह के पीछे जाओ You run after Christ passionately. और यीशु मसीह के पीछे आप हर दिन जाओ। The Lord says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto और you." यीशु मसीह के वचन कहता है, पहले परमेश्वर की धार्मिकता, उसके राज्य की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हारे दिया जाएगा। God is our Father. यीशु मसीह हमारा पिता है। Just like your mom and dad is concerned about your life, जैसे आपके माँ और आपके पिताजी आपके जीवन के लिए लोग सोचते हैं, much more than that our heavenly Father is concerned about rest of your life. उससे भी अधिक हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में सोचते हैं। Won't you trust in Him for your rest of your life? क्या परमेश्वर को हमेशा हर दिन आप हमेशा जीवन के अंत आप विश्वास करेंगे? Do you want to marry some stupid, weird jerk of the world and ruin your life? ऐसे लोग आप शादी करना चाहते हैं तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदे हैं। Or you want to allow God to fix your life? या आप चाहते हैं कि परमेश्वर को अनुमति देने के द्वारा कि आपके जीवन में सब कुछ सही हो। You just throw your life in Christ. आप केवल अपने जीवन को यीशु मसीह में डाल दें। You know, when the Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him." परमेश्वर की वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें ऐसा प्यार किया अपने संतान को वो दे दिया था कि जो कोई इसके ऊपर विश्वास करे shall not perish but have everlasting life. लोग नष्ट न हो लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करें। The word believer simply means throw your life into the hand of Christ. विश्वास करना मतलब अपने जीवन को यीशु मसीह में समर्पित करना। All those who have thrown their life in the hand of Christ have never been perished. जो कोई भी यीशु मसीह के हाथ में अपने जीवन को उन्होंने डाला, उन लोगों का जीवन कभी खराब नहीं हुआ। The Lord will take care of you. यीशु मसीह आपकी मदद को आपको रखवाली करेगा He will establish your life. और आपके जीवन को वो एस्टैब्लिश करेगा। He will provide all your needs. आपके हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। Not your greeds, आपकी लालच को नहीं, but all your needs. लेकिन आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। You will be able to live the rest of your life with love, joy and peace. आपकी अंतिम दिन तक आप आनंद में और खुशी में आप जी सकेंगे। So let us say today to the Lord, इस समय हम परमेश्वर से कहें, Lord, प्रभु help me मुझे मदद करिए to become बनने के लिए a dear child of God. आपके पुत्र, आपके एक प्रिय पुत्र बनने के लिए, संतान बनने के Let लिए। us all say that together. इस समय हम सभी लोग एक साथ कहेंगे, प्रभु मुझे आपके प्रिय संतान बनने के लिए मदद करो। Amen. Shall we pray? इस समय हम प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus, यीशु मसीह, we thank you for this morning. हम इस सुबह के लिए पिता को धन्यवाद देते हैं। Lord, we want to enjoy the rest of your life in your presence. हम आपके समूह में पहुंचे, हम आनंद जीना चाहते We thank हैं। you that you saved us and made us your और child. हम आपको धन्यवाद करते हैं, मुझे आपने हमें अपना संतान बनाया है। But we don't want to be satisfied only with that, O God. लेकिन हम उसी से हम संतुष्ट नहीं होना चाहते। We want to be dear children every day. हम आपके प्रिय संतान बनना चाहते हैं प्रभु We जी। want to love you like you loved us, O हम आपको God. प्यार करना चाहते हैं जैसे पिता ने हमें प्यार किया है। And we want to hate everything that you hate, O God. और हम हर चीज को नफरत करना चाहते हैं जो चीजों को आप नफरत करते हैं। Lord, we bring glory and honor to thy name. और हम आपके नाम में हम महिमा
आदर देते हैं प्रभु Lord, जी। we are asking you today to please lead us and guide us और हम प्रार्थना करते हैं पिता हमें अगुवाई करें प्रभु जी, to become a dear children of God आपके प्रिय संतान बनने के लिए, and help us to love you, O God, और हमें मदद करें ताकि हम आपको प्यार कर सकें, and help us to walk in love और हमें मदद करें ताकि हम प्यार में चल सकें just like Christ loved us. जैसे यीशु ने हमें प्यार किया है। Lord, we pray that thou bless all your children gathered here. और हम प्रार्थना करते हैं मुझे जितने सारे आपके बच्चे लोग यहाँ पे मौजूद हैं हर जन को आशीष करिए, Everyone that is watching us online today. और जो कोई हमें ऑनलाइन में इस समय देख रहे हैं प्रभु जी, Lord, may your mighty blessing be poured upon them today. हम प्रार्थना करते हैं आपके सामर्थ्य आशीष ताकि उनके जीवन को छू Lord, we सके। pray for spiritual maturity and growth. हम प्रार्थना करते हैं आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, हम प्रार्थना We करते pray हैं, for spiritual growth, O God. और हम आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करते Lord, we हैं। also pray that you will prosper your children in good health, O Master. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन लोगों को सफलता दीजिए प्रभु जी, Lord, destroy the works of the evil one that would hinder your children from growing in you, O Lord. शैतान के हर एक कार्य को जो आपके बच्चों के जीवन में बाधाएं लाते हैं, हर चीजों को आप नष्ट करिए प्रभु जी। Lord, we pray that thou will put an edge of protection around your children. हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों के चारों ओर आप रक्षा करके Oh रखिए प्रभु जी, Lord, no virus will come close to your children, ताकि O कौन God. सा भी वायरस उनके पास ताकि ना आ सके प्रभु जी, Lord, even in our whole village will be protected by the Lord Jesus ताकि Christ. हमारे घर हमारे जो विलेज है प्रभु जी आपके द्वारा तक की रक्षा हो सके प्रभु जी, Oh God, not one person in our village will come in contact with virus, O ताकि God. हमारे गांव में से ऐसा कोई भी व्यक्ति वायरस से पीड़ित ना हो सके प्रभु जी, And may the people see the wonderful works of the Lord Jesus ताकि Christ. लोग आपके अद्भुत कार्य को ताकि देख सके प्रभु जी। I especially pray for the young and the old in our church today. और हम प्रार्थना करते हैं जितने सारे यंग लोग हैं परमेश्वर पिता उन सदा जिनमें प्रार्थना करते हैं, Oh God, young and the old, bless them, O Father. जवान या फिर बुरे लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनको And आशीष may करें प्रभु each जी, one learn to walk in love, O God. ताकि हर कोई प्रभु जी प्यार में ताकि चल सके परमेश्वर पिता, That we may become a lighthouse not only to go up but all over the world. ताकि हम एक रोशनी का एक घर बन सके केवल गोवा में नहीं पूरे संसार में। We thank you for the good weather today. और आज अच्छा वेदर के लिए पिता आपको धन्यवाद देते We हैं, give you all the glory and honor. सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं परमेश्वर In पिता, Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen.